friend who's telling you कि no bro, this is not you, you shouldn't do this, knows कि how much potential you have in you, and doing all those things will ruin all those potential that's inside you. So everything has its own price, and losing is the price of elevation. Try to make the most out of the situations that you are in. Hi everyone, my name is Ankita and welcome back to my YouTube channel. मैं 23 साल की हूँ एंड मैं मजाक में ये बोलती हूँ कि इस धरती में अवतरित हुए अब मुझे 23 साल हो गए हैं एंड मैंने कुछ चीज़ें लर्न करी है इस 23 साल की जर्नी में जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। हालांकि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड लाइक मोर नॉलेजेबल देन मी, बट दीज आर सोली माई एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू गाइज, सो दैट शायद किसी ना किसी पॉइंट पे आप उसमें मेरे साथ रेजोनेट करेंगे या शायद आप उससे कुछ सीख पाएंगे, सो दैट you don't do the same mistakes or maybe you don't feel a certain way at that point of time. So without any further ado, let's get started. First lesson बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो ये है कि it's not the value of things that create your worth, you create your own worth. साथ ही हमारा जो first lesson है वो है embracing reality. So my friend, life is full of surprises. There will be downfall sometimes, it will be an uphill sometimes, and you'll feel different moods in life. You'll feel at the top of the world, sometimes you'll feel like the world is pushing you down, but it is how life is. And there will be certain situations, there will be certain circumstances, there will be certain people जिनसे आपकी एक certain expectations होंगी, but they might not be the same in the reality, and that's not your fault. कभी कभार situations आएंगी where just like be very demotivated, but it's not what the situation demands. The situation demands for you to be brave, to be strong, and to be that warrior that you are, because you can be. So ये चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है कि कभी भी ये मत लेके चलो कि ऐसा ही होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड, बी अ स्ट्रॉन्ग वन एंड टैकल द सिचुएशन अकॉर्डिंगली. तो जो नेक्स्ट लेसन है इज़ ओवरकमिंग सेल्फ डाउट इज़ समथिंग दैट आई रेजोनेट किसी भी उम्र में. तो बचपन में भी मैं कोई नई चीज़ करती थी, चाहूँ मैं उस चीज़ में अच्छी भी हूँ, फिर भी मुझे एक ऐसा थॉट आता ही था दिमाग में कि कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, लोगों को कैसा लगेगा. बट ये ऐसा नहीं है कि बचपन की बात है, अभी भी व्हेन आई एम गोइंग टू जॉइन माई न्यू जॉब आई फील द सेम वे. I know how to do the job, but still I feel like कि कैसे करूँगी, क्या होगा, and all those things. And इसके साथ ही ना मैंने बीच में एक कोट सा पढ़ा था, थोड़ा डिफरेंट था बट मुझे जो अभी याद आ रहा है इज़ दैट कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्राइस एंड लूजिंग इज़ द प्राइस ऑफ एलिवेशन. तो जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू कांट डू समथिंग, इट्स बेटर टू थिंक दैट what if I can में there are many situations, and अपने बबल से बाहर निकल के डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज आप बस एक थॉट रख रहे हैं दिमाग में कि क्या पता मैं कर सकता हूँ. ये सोचने से बेटर कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि क्या पता हो जाए. So this is the approach that I think has helped me a lot, because as an individual I demand a lot of exposure. With that, self-doubt and like sometimes I become underconfident is also a part of that. But what I do is that it's okay, देखी जाएगी, हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे एंड किसी एक जर्नी पे होंगे, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि try to make the most out of the situations that you are in. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हैं तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करिए, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको और एक्सपोजर मिलेगा, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, नई चीज़ें करिए. स्टेप आउट फ्रॉम योर ओन बबल एंड बी इन दैट इन्वायरमेंट जिसमें you are experiencing different things. I'm sure you'll feel uneasy. I too feel uneasy, but it's a part. वो होता है ना कि if you're stressing a bit and if you are analyzing yourself in that moment, that is the best part, because उस stress के through ही आपको पता चलेगा कि यार we don't have control over things, so you know you can do it, so it's okay, let it be. आज का दिन खराब मत करो, कल के दिन वो चीज़ होगी एंड अच्छे से होगी. And it's always said कि what you lose is never bigger than what you gain. So if you have time, if you have energy, explore a lot of things, enjoy the moments that you have right now, enjoy the little moments that you have, and just be yourself and explore your own personality, because once you'll know what you like and what you don't like, then maybe you can work on yourself more. Apart from अगर आपको पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, and then you're saying कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, so that won't work. So just overcome the self doubt that you have in yourself. एक दिन में नहीं होगा ये,
अपने आप को काफ़ी बार अनईज़ी करना पड़ेगा, उन सिचुएशंस में डालना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं करी है, उन सिचुएशंस में रहना पड़ेगा जो सिचुएशंस शायद आपके लिए बहुत न्यू है, बहुत एक्सट्रीम है, बट वंस यू विल बी इन दैट सिचुएशन देन ओनली यू कैन लर्न कि वो सिचुएशन आपके लिए है या नहीं, अपार्ट फ्रॉम एक जगह बैठ के ये सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. Learning is a lifelong journey, and with that, personality development is a part. So the next lesson is similar to the last lesson, ki you should like embrace new experiences, because बच्चों के लिए तो it is like कि we do what our parents allow us to do, and that is the best thing also at that age. But when you become an adult, you're in your 12th or maybe you're in your college, you should understand that for you gaining a lot of experiences will add on to your personality, and आप ही फिर अपने बाद में अपने आप को थैंक्स बोलोगे कि थैंक गॉड मैंने वो चीज़ सीखी, थैंक गॉड मैंने वो चीज़ करी. या जैसे अब मैं बोलती हूँ कि उस समय ना यार मैं इवेंट्स बहुत ज़्यादा करती थी, तो अब अगर लास्ट मिनट भी मेरे पास कोई इवेंट आता है या कुछ भी आता है ना, तो मैं उसमें डरती नहीं हूँ, बिकॉज आई नो आई हैव डन इट बिफोर एंड आई कैन डू इट. सो जब आप अपने आप को उन एक्सपीरियंसेस में डालोगे तभी आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीख पाओगे और अपने बारे में भी ज़्यादा सीख पाओगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टेप आउट फ्रॉम द कम्फर्ट जोन. जितना आप अपने कम्फर्ट जोन में रहते हो ना, उतना आप एक बाउंड्री के अंदर रहते हो, बट फॉर यू टू फ्लरिश यू हैव टू बी आउट ऑफ दोज बाउंड्रीज. एंड इट इज़ ऑलवेज सेड दैट ग्रोथ कम्स विद रिस्क. ये हम उस एज में है ना कि if you have a lot to lose, then maybe you are restricted. But when you have nothing to lose, then what is the point in just being in your own bubble? जब कुछ भी आपके पास खोने को नहीं है, तो जाके वो नई चीज़ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि पाने को तो आपको आपके पास पूरा जहाँ है, ये आपने भी सुना होगा. इन्हीं न्यू एक्सपीरियंसेस के बीच में ना आपके अराउंड काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी सिचुएशन आएगी, काफ़ी चीज़ें आएंगी. तो इसी से हमारा नेक्स्ट लेसन आता है कि लर्न टू प्रायोरिटाइज. Learn to prioritize the people who are around you, learn to prioritize the situation that are around you, learn to prioritize the things that you have and things that are around you, and learn to prioritize yourself. This is the main thing, that you need to understand that at the end you need to be with yourself. Nobody else will be standing with you, nobody else will be there for you at all times. You need to understand that you are your own helping hand and you are the only support to yourself. Then only maybe you can step out in that world, because if वो डिपेंडेंसी की वजह से ना there are chances कि हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, and then कभी कभार डिपेंडेंसी में हमारी सेल्फ ग्रोथ भी नहीं होती है, कभी कभार. So if you're dependent on the other individual also, it's not a bad thing, but the bad part is that कि फिर आप अपने को मत खो. You be a personality, they'll be a personality, and you both codependently will grow. That is the best thing. And coming back to prioritizing, this has helped me a lot. Prioritizing things, prioritizing people, prioritizing emotions, because sometimes किसी एक सिचुएशन में आप किसी एक इमोशन से स्ट्रक हो जाते हो और फिर वो इमोशन की वजह से वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है, एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट. प्रायोरिटाइज एज इन कि समझो कि कौन आपका साथ देता है, कौन आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड क्या चीज़ें आपको एक बेटर पर्सनालिटी बनाने में हेल्प कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम वो चीज़ें जो मे बी समवेयर और द अदर आर क्रिएटिंग होल्स इन यू. बिकॉज जैसे ही आप प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दोगे ना, वैसे ही आपके ब्रेन में एक फंक्शनिंग होने लग जाएगी कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो ब्रेन उस पर उतना इन्फोसिस डालेगा ही नहीं. सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज पीपल, लाइक हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आपको अच्छे फीडबैक्स देते हैं. कभी कभार जब आप गलत राह में जा रहे हो तो भी आपको बताते हैं कि ये गलत है. फ्रेंड हु इज़ टेलिंग यू कि नो ब्रो दिस इज़ नॉट यू, यू शुड डू दिस, knows कि how much potential you have in you, and doing all those things will ruin all those potential that's inside you. So learn to prioritize. Not anyone and everyone should have the right to validate you, and आपको भी उनको वो right नहीं देना चाहिए. आपके प्रायोरिटी लिस्ट में जो पीपल हैं वही आपको वैलिडेट करें तो वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव बीन विद यू एट द लोज, एट द हाइज. दे नो you, they know how good are you, they know and they pinpoint when you're doing something wrong, and they understand you, they hear you, and they want your growth, and ऐसे लोग को साथ रखो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ. आजकल के टाइम में ना इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतने ज़्यादा लोग हैं, एंड इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो गया है कि आप अपना सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेस ऑफ ग्रोथ. सबकी अपनी एक टाइमिंग होती है, सबकी अपना एक अलग पाथ होता है, एंड सबकी अपनी एक यूनिक स्किल ऑफ सेट्स बोलने वाली थी मैं. सबकी अपनी एक यूनिक स्किल सेट होती है. तो यू आर यूनिक, एंड if a person is doing XYZ काम,
बहुत अच्छे से। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क उतने ही अच्छे से। मे बी देर इज़ समथिंग कि वो अच्छा ना कर पा रहा हो और वो आप अच्छा करते हो। तो इसी के लिए अगर आप अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगे, डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को डालोगे, डिफरेंट लोगों के अराउंड रहोगे, विदाउट एनी कंपैरिजन एंड विदाउट एनी लाइक पॉइंट ऑफ जेलसी और हेट्रेड, जस्ट बीइंग देयर इन द मोमेंट, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ यूनिक स्किल सेट। एंड उस स्किल सेट के अराउंड अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करोगे तो आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू इन अर्निंग मनी, इट विल हेल्प यू इन योर मेंटल स्टेबिलिटी, इट विल हेल्प यू इन योर इमोशनल पीस। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों ही हूँ मैं इस सिचुएशन में। एंड एक पॉइंट के बाद ना यार पैसा भी काम नहीं आता है। पैसा विल गेट यू थिंग्स, विल बाय यू थिंग्स, विल बाय यू हैप्पीनेस, बट वो जो इंटरनल पीस होती है ना, वो तभी आ पाती है व्हेन यू डू द थिंग दैट यू लाइक अ लॉट। सो try to understand your personality around the skill sets that you're good in, and then try to understand कि उसके around क्या चीज़ है जो मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती है। तो ये थे हमारे 5 लेसन्स जो मैंने इन 23 ईयर्स में लर्न करे थे, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। काफ़ी लंबी और काफ़ी बोरिंग वीडियो हो गई थी। मैं भी सोची थी कि इतनी देर मुझे भाषण देना है, लेकिन देन आई जस्ट थॉट दैट आई वांटेड टू डू इट एंड आई वांटेड टू लेट इट आउट देयर एंड आई वांटेड टू पुट इट आउट ऑन यूट्यूब। So I hope it helped, and this is me, Ankita, signing off. Bye.